Hello everyone and welcome back to my channel. I am Saujanya and this is segment 6 of our second chapter Lines and Angles for class 6 और आज का हमारा टॉपिक is classifying angles. So हमारी बुक में एक फिगर दिया हुआ है जिसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें पूछा है कि what are these angles, है ना? So उसमें हमें दिया हुआ है 3 words, acute angle, right angle and obtuse angle. मैंने आपको इन एंगल्स के बारे में इसके पहले एक लेक्चर में समझाया हुआ है. Let us revise them. Okay, so acute जो पहला सेट ऑफ फिगर्स दिया हुआ है those are called acute angles. सेकेंड वाले जो दिए हैं वो राइट एंगल्स दिए हैं और थर्ड वाला आपको ऑब्ट्यूज एंगल दिया हुआ है. अब ये होते क्या है? So what is a right angle? Right angle is exactly measuring 90 degrees, है ना? और एक L शेप के फॉर्मेट में फॉर्म होता है वो. acute angle क्या होता है? जो right angle से छोटा होता है, जो इस तरफ को लाई करता है. If suppose this is 0 degree, तो 90 if and this is 90. See 90 और 0 के बीच में जो भी एंगल्स फॉर्म होते हैं जो कि राइट एंगल से छोटे होते हैं उन्हें हम कहते हैं acute angle. And all those angles that form beyond 90 degree are called obtuse angle. What are they called? Obtuse angles. Okay, अब याद कैसे रखी acute कौन सा है, obtuse कौन सा है? So acute में ही आप देखो एक वर्ड है cute. So those angles which are small, which are cute, they are called acute angles. जो L shape में फॉर्म होता है वो right angles और जो फिर बच गए angles उसे हम कहते हैं obtuse angles जो कि right angles से बड़े होते हैं. आप यहाँ पर देखो this is less than 90 क्योंकि अगर मैं मान लो right angle यहाँ बनाऊँ यहाँ पर dotted लाइन से इट इज लेस देन 90. ये देखो इधर पे मैं डॉटेड लाइन बनाऊँ 90 की, इज इट लेस देन 90? यस, सो इट इज एन एक्यूट एंगल. यहाँ पर देखो 90 की डॉटेड लाइन बनाऊँ मैं, सो इट इज लेस देन 90. इधर पे 90 की डॉटेड लाइन, दिस इज लेस देन 90, है ना? सो ऑन. सो दीज आर acute angles. These are right angles forming exactly L shaped figures अलग अलग ओरिएंटेशन में. ओके और ऑब्ट्यूज एंगल्स विच आर मोर देन 90. इफ सपोज यहाँ पर मैं 90 डिग्री बनाऊँ, दिस इज माई 90 एंड इट इज बियॉन्ड 90. इफ आई ड्रॉ माई 90 डिग्री हियर, दिस वुड बी माई 90 डिग्री एंड this angle is beyond that. ठीक है? So angles which are more than 90 are called obtuse angles. Angles which are exactly 90 are called right angles and which are less than right angles are called acute angles. Now let us go to figure it out, which is on page number 31. So the first question is saying identify acute, right, obtuse and straight angles in the previous figures. So हमने इस figures में सारे angles mention कर दिए हैं, which is just what we did. Now coming to our second question, which is saying make a few angles which are acute, few which are obtuse, draw them in different orientations. Okay, so हमको different acute और obtuse angles बनाने. Let us start with acute angles. अलग अलग orientation में बनाने. ठीक है? तो if I take my initial ray as this and my final ray, this is one acute angle. क्योंकि अगर मैं 90 बनाऊँ यहाँ पर, that is right angle में बनाऊँ, तो this is less than right angle. Okay, now this is my acute angle. Because if I draw a right angle here, this is my right angle and this is less than right angle. ठीक है? Now if I draw this way, this is again an acute angle because if I extend this and make a right angle, this angle is less than right angle. ठीक है? If I make it like this, ठीक है? If I extend this and show you the right angle, this is my right angle and this angle which is being formed is less than right angle. So these are my few acute angles. These are my few acute angles. Okay? Now let us draw some obtuse angles. What are obtuse angles? Obtuse angles are more than right angles. Okay? So if I have a right angle which is like this, my obtuse angle here would be this. This is my first diagram of obtuse angle. Let us make something else. Let my initial ray be here and my final ray be here. For this, my right angle would be here somewhere
and this angle is beyond that right angle, so it is forming an obtuse angle, this one. ठीक है, now let me make this is my obtuse angle, जहाँ पर this is my right angle, this angle is beyond that right angle. So these are few acute angles, these are some obtuse angles. Now let us go to question number 3. So our question number 3 says, do you know what the words acute and obtuse mean? Acute means sharp and obtuse means blunt. ठीक है, so acute obtuse अभी हम समझ के आ रहे हैं क्या होते हैं. Acute angles are those which are less than 90 and obtuse are those which are more than 90. So actual acute और obtuse words का मतलब क्या होता है. Acute means sharp, मतलब कोई भी छोटा एंगल शार्प होता है, एंड ऑब्ट्यूज इज बिग, तो कोई भी ऐसा ब्लंट जो होता है उसे हम ऑब्ट्यूज कहते हैं. ठीक है, सो अक्यूट इज शार्प, ऑब्ट्यूज इज ब्लंट. ओके, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. Coming to question number 4, हमसे पूछ रहा है find out the number of acute angles in each of the figures below. What will be the next figure and how many acute angles will it have? Do you notice any pattern in the numbers? Okay, so सबसे पहले हमसे पूछा है कि acute angle कितने बन रहे हैं यहाँ पर. So अगर मैं फर्स्ट फिगर में आपको दिखाऊं तो 1 2 3. हाउ मेनी acute angles? 3. और acute कैसे समझ में आ रहा है. लेट मी ड्रॉ अ राइट एंगल हियर. तो ये जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल से कम है. यस. अब इधर पे लेट मी ड्रॉ राइट एंगल, राइट एंगल से कम है, सो दिस इज अगेन एन acute एंगल. ये राइट एंगल acute एंगल बिकॉज इट इज लेस देन 90. ठीक है, सो दीज आई हैव 3 acute angles हियर. यहाँ पर देखते हैं 1 2 3. ठीक है, then 4 5 6, then 7 8 9 10 11 and 12. How many acute angles are we having? 12. Next, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21. How many acute angles are we getting? 21. अब इसके बाद it is asking what will be the next figure. अब आपको याद आ रहा है हमने क्लास चैप्टर 1 में पैटर्न्स पढ़ा था. सो दिस इज फॉर्मिंग अ पैटर्न. क्या हो रहा है, सबसे पहले एक स्ट्रेट ट्रायंगल है, उस पर एक इन्वर्टेड ट्रायंगल ऐड किया, फिर उसके अंदर एक स्ट्रेट ट्रायंगल ऐड किया. अब नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, इस छोटे स्ट्रेट ट्रायंगल के अंदर एक इन्वर्टेड ट्रायंगल होगा. लेट अस मेक दैट ट्रायंगल. दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रेट ट्रायंगल, देन आई हैव एन इन्वर्टेड ट्रायंगल इनसाइड दिस. ठीक है, देन आई हैव अ स्ट्रेट ट्रायंगल इन दिस. Further, I have an inverted triangle inside this. This is what my next figure will look like. ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इस नेक्स्ट फिगर में हमारे पास कितने acute angles होंगे. अब यहीं पर 21 थे तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स और बढ़ गए, तो मतलब इसमें और ज़्यादा acute angles होंगे. So instead of counting, let us find out some pattern in this. तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, 3. ओके, नेक्स्ट में 12, नेक्स्ट में 21. कुछ पैटर्न दिख रहा है, चलो डिकोड करते हैं. पहला 3 है, एक ट्रायंगल है तो 3 acute angles है. इसमें कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, अगर आप इसको देखो तो आपके पास कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3 एंड ट्रायंगल नंबर 4. हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर वी गेटिंग, 4. ठीक है, 4 ट्रायंगल्स हैं, टोटल 12 acute angles मिल रहे हैं. कुछ रिलेशन दिख रहा है, हाँ. एक ट्रायंगल में कितने acute angles बन रहे हैं, 3, तो 4 में कितने बने, 12. अब इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7.
ठीक है, 7 ट्रायंगल्स हैं, मतलब 7 इंटू 3 विच इज 21 अक्यूट एंगल्स. यस, ठीक है. पैटर्न क्या समझ में आ गए? जितने ट्रायंगल्स उतना मल्टीप्लाइड बाय 3 विल गिव अस नंबर ऑफ अक्यूट एंगल्स. सो लेट अस काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर. वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. How many triangles are we having? 10 triangles. मतलब 10 into 3 we are having 30 acute angles in our next figure for this pattern. Okay? Now let us go to our next topic. सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज मेजरिंग एंगल्स. सो अभी तक हम क्या कर रहे थे? कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है, बट वो हम एक अंदाजे से कर रहे थे. बट हमको अगर दो ऐसे एंगल्स दे दिए जाए, ठीक है, जो एक ऐसा है, दिस इज माई फर्स्ट एंगल एंड दिस इज माई सेकेंड एंगल, जो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आप इसमें से कैसे जज करोगे कि एग्जैक्टली कौन सा एंगल बड़ा है? तो उसके लिए मैथमेटिशियंस ने हमको एक मेजरमेंट दी है विच इज कॉल्ड डिग्रीज. तो उन्होंने क्या किया कि एक सर्कल के सेंटर पे उन्होंने 360 पार्ट्स में उसको इक्वली डिवाइड किया. ओके, ऐसे ऐसे करके 360 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऐसे ऐसे करके 360 टाइम्स, ठीक है, 360 पार्ट्स में डिवाइड किया, और ईच पार्ट को 1 डिग्री बोला है. व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द मेजर ऑफ एंगल, ठीक है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो दे डिवाइडेड इट इनटू 360 इक्वल पार्ट्स at the center of the circle which measures each of its unit as 1 degree. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक कंसिडर करो, एक एंगल दिया हुआ है ये, ठीक है, जिसमें 30 लाइंस दी हुई है यहाँ पर, ठीक है. 30 लाइंस मतलब 30 यूनिट्स, 30 यूनिट्स मतलब 30 डिग्रीज. दैट इज हाउ वी मेजर एन एंगल. ठीक है, तो अब हम किस पे जज करेंगे कि एंगल कैसे, कितना बड़ा है या कितना बिग है दूसरा एंगल से? वो हम ऐसे जज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये एंगल एक दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, सपोज 30 डिग्री, ठीक है. एक और एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 45 डिग्री. सो नाउ इफ वी हैव मेजरमेंट्स, आप इसमें से क्लियरली बता सकते हो कि कौन सा एंगल बड़ा है. दिस एंगल इज ग्रेटर बिकॉज 45 इज ग्रेटर देन 30. सो व्हेन यू हैव मेजरमेंट्स इट इज इजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई विच एंगल इज बिगर. ओके, अब आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इन डिग्रीज. अब 360 इक्वल पार्ट्स मतलब फुल टर्न को क्या बोला गया है? फुल टर्न को बोला है 360 डिग्रीज. ठीक है, मतलब ये फुल टर्न हुआ, ये 360 डिग्रीज हुआ. ठीक है, अब किसके लिए पूछा गया है? स्ट्रेट एंगल के लिए. स्ट्रेट एंगल क्या होता है? अभी हमने किया बहुत सारे लेक्चर्स में, क्या कि जब फुल टर्न को मैं हाफ डिवाइड कर दूं, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल, जो एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होता है. तो अगर फुल टर्न 360 है तो स्ट्रेट एंगल कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 180 डिग्रीज, है ना. 360 को 2 से डिवाइड करेंगे 180 डिग्रीज आएगा. उसके बाद आपसे बोल रहे हैं What is the measure of right angle in degrees? और हमने क्या किया है? राइट एंगल क्या होता है? सपोज ये मेरा स्ट्रेट एंगल है, इसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? राइट एंगल, क्योंकि 2 राइट एंगल मिला के एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, है ना. तो राइट एंगल क्या होगा? फर्दर स्ट्रेट एंगल अपॉन 2, और स्ट्रेट एंगल कितना है? 180 अपॉन 2 विच इज नथिंग बट 90 डिग्रीज. ठीक है, तो राइट एंगल का वैल्यू कितना आ गया? 90 डिग्रीज. ऑल्सो 2 राइट एंगल मिला के एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, और 2 स्ट्रेट एंगल मिला के एक फुल टर्न बनाते हैं. ठीक है, ये हो गया अपने मेजरमेंट्स. नाउ अब 360 ही क्यों? तो इसके लिए बहुत सारे रीजंस है, लेकिन कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं है. कुछ लोग कहते हैं कैलेंडर में 360 डेज थे इसलिए 360. कुछ लोग कहते हैं जो पुराने जमाने की व्हील्स थे उसमें 360 स्पोक्स थे इसलिए 360 डिग्री, है ना. तो अभी तक उसका कुछ क्लियर रीजनिंग नहीं है, बट येस टोटल मेजर ऑफ एन एंगल इज 360 डिग्री. ठीक है, राइट एंगल के लिए 90 डिग्रीज एंड स्ट्रेट एंगल के लिए 180 डिग्रीज. Now let us go to the question which is given on page number 34.
अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है that the circle has been divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 parts below. What are the degree measurements of the resulting angles? Write the degree measures down near the indicated angle. Okay. So अब हमको बताना है each में ये जो angle है वो कितना बन रहा है. Okay. So to begin with, सबसे पहले there is one single angle here और एक total turn हमने कितना पढ़ा, कितना है 360 डिग्री. Here 360 has been divided into two parts, तो मतलब 360 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे. डिवाइड करते हैं 2 2 1s are 2, 3 minus 2 1, 6, 2 8s are 16 एंड ये 0, तो इट इज 180 डिग्री. यहाँ पर मेंशन कर दो 180 डिग्री. ओके, यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 360 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, 3 1s are 3, 6 नीचे लेके आएंगे, 3 2s are 6 एंड 0. ठीक है, तो ये कितना आ गया 120 डिग्रीज. अब 360 को यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे बिकॉज वी हैव 4 पार्ट्स. 4 9s are 36, नथिंग, ये 0 पर, ये आ गया 90 डिग्रीज. हाँ, तो अब यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय 5, 5 7s are 35, 36 माइनस 35 1, ये 0, 5 2s are 10, सो दिस इज 72 डिग्रीज. नाउ यहाँ पर कितने पार्ट्स में, 6 पार्ट्स में, सो 360 डिवाइडेड बाय 6, 6 6 36, नथिंग, ये 0 पर, ये आ गया 60 डिग्री. ठीक है, नाउ हियर इट इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. 360 डिवाइडेड बाय 8, 8 4s are 32, 36 माइनस 32 4, ये 0 यहाँ पर आया, 8 5s are 40, सो हियर ईच एंगल इज 45 डिग्रीज. नाउ यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 9, तो 360 डिवाइडेड बाय 9, 9 4s are 36 और ये 0 पर 40 डिग्री. नाउ हियर इट इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, डिवाइडेड बाय 10, 10, इसको आप ऐसे कर लो, 360 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, तो वन एंगल इज 36 डिग्री. ठीक है, यहाँ पर इट इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स. 360 डिवाइडेड बाय 12, 12 3s are 36, नथिंग, ये 0 ऊपर आ गया, 30 डिग्रीज. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट द क्वेश्चन दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 34. सो इसी के साथ हमने आज के लेक्चर को फिनिश किया. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी.